morning everyone. Today I am going to explain you how to calculate arithmetic mean in various conditions, and today I'll be telling you missing frequency or missing value in discrete series, or you can say continuous series. So let me first start with discrete series. So this is arithmetic mean. Find missing value right. So first we'll talk about discrete series. Suppose a question is given here. Say suppose this question is given and it has been asked to find out the missing value. Here this is the value which is missing. So how do we do the solution in this? We suppose the missing item as x, right? We assume it. Let the missing value be x. Now by putting this x in this, we'll get wages. That means this is 110, 112, 113. यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना स्मॉल x लिखना है, क्योंकि कैपिटल x तो ये होगा, राइट. 117, दिस इज स्मॉल x, 125, 128 and 130. Number of workers, this is frequency, 25, 17, 13, 15, 10, 8, 6, 2. Now to calculate mean, what we should know, mean is equals to, we know that sigma fx over sigma f. So now we have to find out fx and the total of f. Total of f we can find out here. Summation f is equal to 96. Now we have to find out fx. Fx means the multiplication of x and f, that means wages and frequency. So by multiplying 110 into 25 we get 2750. 112 into 17, it is 1904. By writing all the values, I am writing here all the values, the multiplication of all the frequencies with the x item, we get here 10 into x is 10x, right? क्योंकि 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, then 1000, then 768 and 260. अब हमें चाहिए इसका टोटल, क्योंकि हमें फॉर्मूला में क्या लगाना है, समेशन fx. Now main thing here we have to follow is p plus 260 plus 768 plus 100 plus 1000, सॉरी, ये 10x को हम अलग से लिख देंगे प्लस 10x, क्योंकि हमें ये वैल्यू मालूम ही नहीं है ना, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इस 10 को ऐड नहीं करेंगे. बच्चे क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, 10 को भी ऐड कर लेते हैं, साथ में लिख देते हैं प्लस x. नो, हमें इस पूरी वैल्यू को साइड करना, प्लस 10x, राइट. और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है. इनका टोटल हमारा आ जाता है 9906. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला 9906 plus 10x upon 96. Now here mean is also given in the question. Now what is the mean? क्योंकि हमें अगर एक चीज़ गायब की है तो दूसरी चीज़ ज़रूर दे रखी होगी. Here you can see that mean is given 120. So by putting the value here 120, what we'll do now, हम इस 96 को इधर ले जाएंगे. 120 into 96 is equals to 9906 plus 10x, or by multiplying 120 into 96 we get 11520. अब इस 9906 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, ये 10x रह जाएगा. इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1614 इज इक्वल्स टू 10x. अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 1614 upon 10. So answer will be here 161.4. So we can conclude it by writing thus
missing value, that is small x is equals to 161.4 answer. This is how you calculate the missing value in the discrete series. I hope this question is clear to you. And now I will be explaining the same missing value question in continuous series. If a continuous series is given to you, how will you calculate? So suppose this is the question. Suppose this is the question given, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखा, वेजेस दिया हमने यहाँ पर, वेजेस 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया. ये हमारा x है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे हो गए फ्रीक्वेंसी. मैं अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप इसको नंबर ऑफ़ वर्कर्स पूरा लिखेंगे. 5, 3, 4, क्वेश्चन मार्क है, हम इसको x कर देते हैं. तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x. ठीक है, फिर आ जाएगा 2, 6 और 30. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वी विल बी कैलकुलेटिंग द मिड वैल्यूज़. तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो यहाँ मिड वैल्यू आ जाएगी 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75. फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, मिड वैल्यू इज़ गिवन. डायरेक्ट मेथड से अगर हम करते हैं तो हम FM निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F. सिग्मा F अगर हम निकालें यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा. सिग्मा F का मतलब टोटल ऑफ F. सबको ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा ये 33. अब F ये तो हमें गिवन नहीं है x, हमने इसको स्मॉल x लिख दिया, राइट. 33 प्लस x. और FM अगर निकालेंगे दैट मीन्स F और M का मल्टीप्लिकेशन. इसका मल्टीप्लिकेशन हम लिख देते हैं 5 × 15 75, 25 × 3 75. लाइकवाइज सभी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 45x. फिर इधर आ जाएगा 110, 390 एंड 975. इसका जब हम टोटल करेंगे सिग्मा FM, ये बनेगा 1765 प्लस 45x. इस 45 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, बट ये हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि इसका हमें वैल्यू एग्जैक्टली मालूम नहीं है. नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर, मीन इज़ गिवन टू अस हियर 50. इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50, यहाँ हमने 50 लिखा इज इक्वल टू 1765 प्लस 45x होल अपॉन 33 प्लस x. ये 33 प्लस x उठ के इधर आ जाएगा, तो हम 50 को 33 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे. एज इट इज़ आ गया 50 × 33 1650, 50 × x 50x. ठीक है, तो इधर हो गया 1765 प्लस 45x. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x वाले हम एक साइड ले जाएंगे और जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हमारी उसको हम एक तरफ ले जाते हैं. ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे ये है हमारा 1650, हम 50x वाले इधर ले जाते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो 50x इधर ऑलरेडी है, माइनस 45x, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा. ऐसे ही 1650 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ आ गया 5x इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 115, तो x इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 5. हियर x इज इक्वल्स टू 23. हेंस मिसिंग वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल x इज 23 आंसर. I hope this is clear to you. If you have any problem, you can ask me anytime. Practice more questions from book. Thank you. God bless you all.